Hello students, good evening. Am I audible? Hi Sadia, hello Vishal, good evening. Yeah. So good evening champion once again, and we are going to continue a session about the structure of atom. Probably this chapter may be or may not be for your examination, but let me tell you, this chapter is having its own value for NEET and JEE examination. If you are really aspiring for NEET examination, if you are aspiring for any JEE examination or any engineering examination, believe me, structure of atom is playing immense role in your question paper. Okay, so we have to see probably in your board examination, probably in your school examination, this chapter may not be because this chapter is the third or fourth chapter in your textbook. So they may ask in term one, not in term two. But let me tell you, this chapter is having very high value. Okay, so we should go with it. We should explore this concept as well as. Hi Pooja, good evening. How are you? Okay, so we will be exploring this chapter, and meanwhile I expect from you that you will ask me the question. I expect from you that you will make a note of it, make a note of the important point whichever is there. Okay, so सारी चीजें हम लोग करते जाएंगे one by one, and it will be easy, nothing to worry about. It will be easy. Let's go ahead, and structure of atom is the chapter, and we are going to talk about subatomic particles. So let's start. Hi Rohini, hello Avinash, good evening. Hi Anuj, good evening. So we are going to talk about the subatomic particle and the isotope. Before dealing with subatomic particle, let me tell you, the story not start from here. Story start from matter. Story start from matter, not from here. Story start from मैटर. मैटर से चालू होती है हमारी स्टोरी. कहां से? मैटर से. मैटर हो गया, लफड़ा हो गया, ऐसा मतलब वो वाला मैटर नहीं है. मैटर का मतलब होता है एनीथिंग which has mass, which has mass, which exert pressure, which occupies space, is called as an matter. मैटर किसको बोलते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो जिसमें मास हो, जिसमें वजन होना चाहिए, जो प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए और जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको रख देने पे जगह घेरता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. यस, स्टोरी यहां से चालू होती है. तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये जो मैटर होता है वो किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सम स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? uh, everything around us is a matter. Yes, Pooja, I agree with you. Everything around us is a matter. Yes. So matter is made up of what? So Achilles have given the answer atom, but some student gave the answer compound. Some student gave the answer molecule. Some student gave the answer element. Okay, but the ultimate part is atom. Ultimate part is atom. ठीक है. सो हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर किस चीज से बना है? कुछ बच्चे अगर बोलेंगे कि एलिमेंट से बना है, तो मैं बोलूंगा एलिमेंट किससे बना है? तो आप बोलोगे एटम से बना है. तो यही जो एटम है इसकी ही स्टडी करने वाले हैं कि एटम जो होता है वो दिखता कैसे है. पहले तो हाउ इट्स लुक, हाउ इट्स लुक, हाउ इट गॉट डिस्कवर्ड, हाउ इट गॉट डिस्कवर्ड. Okay, how it got discovered, then how it what it contain in that, like the proton, electron and neutron, what it contain in that. ये सारी चीजें. हाय वैष्णवी, गुड इवनिंग. ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे. और कौन कौन सी थियोरी आई जो एटम से रिलेटेड है, और कौन कौन से हाइपोथेसिस है इस एटम से रिलेटेड. बोर मॉडल क्या है, रुदरफोर्ड मॉडल क्या है. फिर हम लोग और भी बातें करेंगे. सिर्फ रुदरफोर्ड और बोर्ड मॉडल नहीं, हम लोग और बात करेंगे. प्लैंक्स क्वांटम थियरी की बात करेंगे हम लोग. फिर हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं. 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं. कौन कौन से
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग वन बाय वन, यस, आइसोथर्म होंगे, आइसोबार होंगे, आइसोटोप्स होंगे, आइसोटोन्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो इनको बारी बारी से इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो दिस चैप्टर इज अ पैकेज ऑफ ऑल वॉट एवर वी आर टॉकिंग नाउ, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ओके। तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आइसोडायफर भी है, यस, आइसोडायफर भी है, सारी चीजें हैं। आइसोडायफर आपके प्रोबेबली टेक्स्ट बुक में ना रहे, लेकिन आपके नीट और जेई पर्सपेक्टिव के लिए आइसोडायफर है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट। तो पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल का। सब एटॉमिक पार्टिकल, अब हमको पता चल गया कि एलिमेंट होता है, हमको पता चल गया एलिमेंट किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। और एटम किससे बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल बना होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल को पढ़ने से पहले हमको एक एक बंदे की थियरी पढ़नी पड़ेगी। कौन है वो, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ना पड़ेगा। हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू स्टडी अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स टॉक अबाउट दिस। So the point number one, 4.1, subatomic particle. Dalton's atomic theory was able to explain the law of chemical combination successfully. And however, it failed to explain some property of matter. For example, it could not explain why substance like glass or ebonite, when rubbed with a silk or fur, generate electricity. Discovery of subatomic particle in the late 19th, the early 20th century set a blow to Dalton's atomic theory. So before than this Dalton atomic theory, we will be talking. See, Avinash, यहाँ पर I agree with you, beta. This topic is deleted, but let me tell you, let me tell you, this topic is for many colleges. It is not there for exam also, but still we are doing. Our goal is not to do only for perspective of our examination. Our goal is to do for our प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों के पास, देखो नेक्स्ट ईयर पता नहीं सिलेबस डिलीटेड रहेगा कि नहीं रहेगा फॉर 12th, तो अगर नहीं रहा तो ऐसे टाइम पे आप नीट और जेई की जब प्रिपरेशन करोगे या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, ज्यादा डिलीटेड नहीं रखूंगा मैं, थोड़े थोड़े डिलीटेड पोर्शन रखूंगा और थोड़ा सा बाकी अपना रेगुलर वाला रहेगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो डाल्टन डाल्टन ने क्या बताया, पहले बताओ डाल्टन ने क्या बताया। डाल्टन एक साइंटिस्ट था। डाल्टन ने बताया कि दुनिया की जो सारी चीजें हैं ना, सारी चीजों को क्रश करोगे ना तो आप अल्टीमेट लेवल तक पहुंच जाओगे। उनको बोलते हैं हम लोग एटम। एटम, he says, Dalton says that every component, every matter in the universe is made up of ultimate particle, and this ultimate particle is called as an atom. This ultimate particle is called as an atom. He said atoms are indivisible in nature. Indivisible in nature. You can't divide the atom. Atom can't be divided. Who said? Dalton. Dalton says that atom can't be divided. आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, वो अल्टीमेट पार्ट है, उससे ज्यादा नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, डाल्टन तो बहुत रिसेंट स्टडी है। इन 300 BC, 300 BC, before Christ, there was a scientist called Democritus, explains about the atomos. डेमोक्राइटस ने एटोमॉस के बारे में बताया था कभी 300 BC में, मतलब आज से 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स पहले डेमोक्राइटस ने एटम्स के बारे में बताया था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताता, हाय अब्दुल, गुड इवनिंग। दूसरी चीज 500 BC में, पहले 500 BC
ago, means like 500 BC, in 500 BC there was a scientist in, मतलब 2800 साल पहले, आज से 2821 साल पहले, आज से 2821 साल पहले there was a Indian sant, Indian saint whose name was Maharshi Kanad. Maharshi Kanad was the Indian saint who gave the concept of Anu and Parmanu. Anu and Parmanu. This is in Sanskrit language. This is in Sanskrit language. In English, now we call it as a molecule, and Parmanu is called as an atom. This theory was given by 2821 year ago by Indian saint Maharshi Kanad, who gave the concept of Anu and Parmanu. After that, Democritus was one physician. Democritus was one physician. He was churning the medicines. He was churning the medicine in mortar and pestle. आपको मोटार पेस्टल पता होगा, डॉक्टर लोगों का सिंबल होता है, देखो ऐसे बाउल होता है, उसमें एक पेस्टल होता है, ऐसा पेस्टल होता है पीसने वाला, ऐसा सिंबल होता है ना, डॉक्टर लोगों का सिंबल पता है ना कि मोटार और पेस्टल। तो अपने मोटार और पेस्टल से पीस रहा था वो, तो उसको उस समय ध्यान में आया डेमोक्रेटस को कि क्या मैं इसको कितना बारीक पीस सकता हूँ, कोई मेडिसिन है, कोई पाउडर है, कोई सब्सटेंस है, उसको मैं कितना बारीक कर सकता हूँ। तो डेमोक्रेटस ने बोला कि आप कितना भी बारीक करो, एक ऐसा लेवल आएगा कि उससे बारीक नहीं होगा। ओखल, हाँ ओखली बोलते हैं, या फिर मोटार और पेस्टल बोलते हैं। ओखल और इसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लेकिन इसको मोटार और पेस्टल बोलते हैं, जिसमें मसाला वगैरह आप देखोगे पीसने के काम में आता है, घर में आपके होगा, आप देख सकते हो घर में एल्यूमिनियम वगैरह का होता है जनरली, और डॉक्टर के पास जो क्ले होता है वो क्ले का होता है, चाइना क्ले का होता है, ठीक है। तो मोटार पेस्टल में वो पीस रहा था और उसको तब क्लियर हुआ कि भाई इसको हम कितना ग्राइंड कर सकते हैं, कितना बारीक कर सकते हैं। अब तब उसको रियलाइज हुआ, तब उसको वो रियलाइज हुआ कि यस, इसको मैं तो कितना बारीक कर सकता हूँ, एटोमॉस लेवल तक कर सकता हूँ। एटोमॉस लेवल, एटोमॉस लेवल का मतलब होता है कि अल्टीमेट लेवल, अल्टीमेट लेवल, खलबत्ता। अच्छा मेरे को नहीं मालूम बेटा, आप इसमें क्या बोलते हैं उसको इस लैंग्वेज में, ठीक है, बट मोर्टार और पेस्टल बोलते हैं, मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल बोलते हैं, ठीक है। मराठी में खलबत्ता बोलते हैं, हाँ खल 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 बोलते हैं, बराबर खल बोलते हैं, लसन वगैरह ये सब कूटने के काम आता है, देखो। हाँ, सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन की थ्योरी बहुत नई है बेटा, अगर उससे पहले देखोगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम्स की थ्योरी दी है। अब देखो, अब डाल्टन जी क्या बोलते हैं, डाल्टन बोलते हैं, डाल्टन कहते हैं कि एटम जो होता है, एटम्स वो अल्टीमेट पार्ट है, इज टेलिंग अल्टीमेट, इसका मतलब इससे नीचे तो नहीं हो सकता एटम, इससे इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। उन्होंने बोला कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिवाइड इट, you can't divide it, you can't break it into the more simpler form, indivisible in nature, indestructible in nature, okay, even invisible in nature। आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते एटम को, एटम इतना छोटा होता है कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा किसने बताया? डाल्टन ने बताया, ठीक है। तो तो ये तीन चीज बता दी। डाल्टन ने एक बड़ी स्टार वाली बात बताई, स्टार वाली, उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक एटम, टू और मोर देन टू एटम, two atom combine two atom combine to form a molecule, or if two different atom combine in specific proportion form compound, okay। तो कंपाउंड कैसे बनेगा? एटम ए कंबाइन विथ एटम बी in specific ratio, specific proportion will form the compound, okay। So are you getting what is the compound that we'll be dealing? वो आएगा, जैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल डाल्टन की थियरी में 4 पॉइंट आपको याद रखना है। डाल्टन ने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles and these tiny particles are called as an ultimate particle or atom. डाल्टन बोलते हैं कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, डाल्टन बोलते हैं कि एटम इज इनविजिबल, और डाल्टन ने चौथा पॉइंट क्या बोला कि एटम्स कैन combine with each other with the same element, same atom, or with the different atom to form a molecule. Okay, and this formula was called as law of mass conservation or law of combination, law of chemical combination. This formula was given by John Dalton, was called as a chemical law of chemical combination. So कभी कभी क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने कराया था, किसने बताया था, तो आप बताएंगे जॉन डाल्टन। अब यहीं पे स्टोरी खत्म हो गई बेटा। थोड़ी सी स्टोरी सुन लो, आज के दिन स्टोरी सुन लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना बेटा, हमको सीखना है कि नहीं। तो आज थोड़ी सी स्टोरी सीख लीजिए, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। अब यहीं पे क्या हो गई, स्टोरी खत्म हो गई। स्टोरी सब सब सबने जॉन डाल्टन की बात मान ली और 300 साल बीत गए। कितने साल बीत गए, 300 साल बीत गए। स्टोरी खत्म हो गई, जॉन डाल्टन की बात मान ली गई और 300 साल बीत गए। उसी दौरान कुछ साइंटिस्ट अपने हार्डवर्क कर रहे थे। हार्डवर्क कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक थे माइकल फराडे, माइकल फराडे, एक माइकल फराडे थे। फिर दूसरे थे JW फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट एंड विलियम क्रुक, विलियम क्रुक। ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट है। शॉर्ट में रिपीट करता हूं, देखो यहीं से स्टोरी चालू हुई है, वैष्णवी टेंशन मत लो। हमने देखा, शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि हमने देखा एटम की बात कर रहे थे। मैंने बोला कि एटम की स्टोरी एटम से चालू नहीं होती है, ये कहां से चालू होती है, ये हमारे मैटर से चालू होती है। मैंने बताया मैटर क्या होता है, मैंने बताया मैटर क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी। उसके बाद मैंने बताया कि मैटर किससे बना होता है, एटम से। एटम की बात किसने बताई, जॉन डाल्टन ने बताई। जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन क्या कर रहा था, और उसने बताया कि एटम इंडिविजिबल है, इनविजिबल है, और एटम्स कंबाइन होकर नया कंपाउंड बन सकता है। जे थॉमसन नहीं आया बेटा, अभी जे थॉमसन अभी काम कर रहा है बहुत, अभी बच्चा है, अभी जे थॉमसन बच्चा है, बच्चा है मतलब अभी छोटा है, अभी जे थॉमसन, अभी इन लोगों के बाद आएगा जे थॉमसन, अभी नहीं आएगा, रुको। तो माइकल फराडे आए, माइकल फराडे सबसे पहले आए। उन्होंने क्या कहा, क्या बोला, माइकल फराडे ने बोला कि अगर सॉलिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर स्टडी कर रहे थे वो लोग, दे वर स्टडीइंग द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दिस इज नॉट स्टोरी ऑफ एटम, दिस इज स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माइकल फराडे ने बोला कि सॉलिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो व्हाई नॉट इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द लिक्विड। तो आपके हिसाब से लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं होगी, फटाफट बताओ तो जरा मुझे, फटाफट बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं होगी, बताओ। होगी, 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 अच्छा। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं होगी, यस, यस। तो ऐसा उनको भी लगा था, लेकिन उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए कि लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, लेकिन वो बहुत बार फेल हुए। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते ये पाया कि सिर्फ वही लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वही लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जिनके अंदर केटायन और एनायन हो। केटायन और एनायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, Cl सॉरी कैल्शियम 2+ हो गया, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होंगे। ओके, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे, दोनों चार्जेस मतलब दोनों आयन होंगे, वही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन मतलब बाकी कोई लिक्विड कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे कि बेंजीन देख लीजिए, बेंजीन ये ऑयल जैसा होता है और लिक्विड होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि नो आयंस प्रेजेंट, इसके अंदर कोई आयन
नहीं होता है। किसके अंदर आयन नहीं होता है? बेंजीन के अंदर। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ले लो, वो भी क्या होता है? लिक्विड में मिलेगा आपको, लेकिन ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं। तो ऐसी चीजें जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं, वो लिक्विड क्या होते हैं? उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर आयन होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही कंडक्ट कर सकते हैं। बेटा H2O मैं आपको पहले क्लियर करने वाला था, एक बच्चा पूछा भी था बीच में, मैं बता देता हूं। वाटर इज प्योर वाटर, हाँ, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर, अगर वाटर के अंदर कोई मिनरल है, जैसे ग्राउंड वाटर, जमीन से निकाला हुआ पानी है, या फिर आपका टैप वाटर है, नल का जो पानी है, वो सब पानी जो रहता है उसके अंदर और भी आयन होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ऐसे छोटे छोटे आयन होते हैं, पोटेशियम आयन, ये आयन होते हैं ऑलरेडी। और इस आयन की वजह से जो जो रेगुलर पानी है, जो घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, वो पानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। बाकी के पानी जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ गया? प्योर वाटर विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखना, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर में सिर्फ मॉलिक्यूल होता है, आयंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात समझ में आई? सर P7 होता है ना उसका, PS क्या क्या P7 से क्या होता है? हर्ष क्या बोल रहा है? सर P7 होता है ना, पीएच, हाँ पीएच उसका 7 होता है, ठीक है ना, पीएच 7 है तो ओके, उससे कुछ मतलब नहीं। जिसका 7 होता है नहीं कंडक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। जो 7 है ऐसा कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, उससे लेना देना नहीं है। हाँ, उससे लेना देना नहीं है। हमको लेना देना क्या है? उसके अंदर के आयन से। अगर उसमें केटायन और अनायन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात किसने बताई? माइकल फैराडे ने बताई। माइकल फैराडे ने ये मुझे बात बताई थी। उसके बाद आए, उसके बाद माइकल फैराडे के बाद आए, माइकल फैराडे के बाद जो आए हैं उनका वो जे डब्ल्यू फ्रॉस्ट एंड विलियम क्रुक, विलियम क्रुक, ये दो साइंटिस्ट हैं, विलियम क्रुक एंड जे डब्ल्यू फ्रॉस्ट। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि अगर सॉलिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ड्यू टू आयन, तो गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्या? उनका क्वेश्चन था। किसका किसका क्वेश्चन था? जे डब्ल्यू फ्रॉस्ट का या विलियम क्रुक का। इनका क्वेश्चन था कि क्या गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? तो आंसर बताइए, आप सब बताइए, गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? बताइए बच्चों। अविनाश और इन लोगों ने बताया है, हाँ ठीक है, अविनाश ने नो बोला है। नहीं, विशाल भी बोलते हैं नहीं, गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन बोल दिया किसी ने। चलो ठीक है, इसका सही आंसर है कि गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन अंडर कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? गैस के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। गैस के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कब? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हो सकती है। अब ये मैं बताता हूँ, उन लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। किसने चालू किया? जे डब्ल्यू फ्रॉस्ट और विलियम क्रुक ने। अब इनको मिला नहीं आंसर, इसका इसका मैं एग्जांपल बता सकता हूँ। इसका एग्जांपल है ट्यूबलाइट। जो घर में हमारी ट्यूबलाइट है ना, जो हमारे घर में ट्यूबलाइट है, देखो, बिजली में, यस, ट्यूबलाइट, बिजली में नहीं रे बच्चा, ट्यूबलाइट में। तो ट्यूबलाइट, जो घर पे ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं, उस ट्यूबलाइट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्यूबलाइट में आपके वायर नहीं होता,
आपको वायर नहीं होती, यहाँ पे प्लेट होती है, यहाँ पे प्लेट होती है और कनेक्शन होता है बस। यहाँ पे वायर, अंदर वायर नहीं होता है। अंदर वायर क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर गैस भरी होती है, गैस। और इस गैस का प्रेशर क्या रखते हैं? लो प्रेशर रखते हैं। इसका प्रेशर क्या रखते हैं? लो। और वोल्टेज सप्लाई क्या है? हाई। हाई टेम्परेचर नहीं, हाई वोल्टेज, सॉरी, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखना है। लो प्रेशर रखना है और हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज है, टेम्परेचर नहीं लेना है। लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज सप्लाई रखना है। सो लॉन्ग ट्यूब लाइट is the having the same type of glass. Yes, 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 some type of glass. Yes, it's a type of glass which containing the gases. Yes, it is having the gases. Very good, correct, Harsh. So ट्यूब लाइट इज गुड एग्जाम्पल। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, किसने? JW प्रॉस ने और विलियम क्रुक ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे किया देखो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, सारी स्टोरी सुनते जाओ पहले, फिर हम लोग पढ़ने आ जाएंगे, वापस वापस पढ़ेंगे, समझ में आने लगेगा। देखो ऐसे ट्यूब बनाया उन्होंने, 10 सेंटीमीटर मोटा और 1 मीटर चौड़ा ट्यूब बनाया, 1 मीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब उसका ये देखो 10 सेंटीमीटर था और ये 1 मीटर था, ऐसे करके उन्होंने ट्यूब बनाया। ठीक है, और ट्यूब पे एक कॉर्नर पे एक प्लेट लगाया जिसको बोला कैथोड, जिसको बोला कैथोड। और दूसरे कॉर्नर पे उन्होंने एक प्लेट लगाया जिसको बोला एनोड। क्या बोला? एनोड। एनोड, ध्यान से सुनना। तो एक प्लेट लगाया जिसको बोला कैथोड, दूसरे प्लेट लगाया जिसको बोला एनोड। और इसको क्या कर दिया इन्होंने? हाई वोल्टेज सप्लाई से, बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई मतलब नियरली 10,000 वोल्ट के आसपास, 10,000 वोल्ट के आसपास पास किया, हाई वोल्टेज सप्लाई पास किया बैटरी से। ठीक है, बैटरी से हाई वोल्टेज सप्लाई पास किया इन्होंने। और जब पास किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड और एनोड के केस में, पहले तो देखा तो पहले तो नहीं पास हो रहा था। जब वो कंक्लूजन पे आए कि लो प्रेशर रखना है, गैस के अंदर प्रेशर लो रखना है, इसके अंदर गैस भर दिया, इसके अंदर गैस भर दिया और गैस लो प्रेशर पे रखा, लो प्रेशर, और वोल्टेज सप्लाई क्या रखा? हाई। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बीम ऑफ लाइट, यहां से एक बीम ऑफ लाइट निकलती है और जाके इस एनोड को हिट करती, हीट नहीं बोल रहा, हिट करती है, HIT वाला हिट करती है। ठीक है, तो ये जाके उसको हिट करती है। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट विच गैस इज फिल्ड इन द ट्यूब, एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है, लो प्रेशर रखना है। इसका कंडीशन कुछ नहीं था, कोई भी गैस हो सकती है, लो प्रेशर रखना है। कोई भी गैस, जस्ट लाइक हीलियम, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ऐसे। आर्गन, जनरली आर्गन इस्तेमाल होती है, आर्गन। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक बीम ऑफ लाइट निकलती है और जाके किसको हिट कर रही है? एनोड को। वो भी बड़े स्मार्ट थे। उन लोगों ने क्या किया, इस एनोड के ऊपर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी ना तो चमकेगा। ऐसी स्क्रीन लगा दिया जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? चमकेगा। हाँ, ठीक है, लाइट पड़ेगी तो चमकेगा। तो यहां से जब बीम ऑफ लाइट निकलता था, ग्लो होगा, ये ग्लो होगा, दिस विल ग्लो। Fluorescent screen. They made the fluorescent screen. They applied the fluorescent screen. So when a beam of light was coming and was hitting to this was glowing. This area was glowing. ये एरिया क्या हो रहा था? ग्लो हो रहा था। और जब ग्लो हो रहा था तो उनका उनका जो एम था, व्हाट वाज द एम? विल द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द गैस? So they said yes, it will pass through the gas. The conclusion is low pressure and high voltage supply. एंड दे कंक्लूडेड, उनका कंक्लूजन हो गया, यहीं पे बात खत्म हो गई, यहीं पे बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके 20-30 सालों बाद, 20-30 साल बाद, 20 to 30 years आफ्टर, 20 to 30 years, हिज स्टूडेंट, उनका स्टूडेंट आया और इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने लगा। किसकी? कैथोड रे की प्रॉपर्टी को पढ़ने लगा। कोई गेस कर सकता है वो कौन सा स्टूडेंट था? कोई गेस कर सकता है वो कौन था वो स्टूडेंट जो आके इनकी प्रॉपर्टी को, इस कैथोड रे की प्रॉपर्टी को पढ़ने लगा? यस, वेरी गुड, ही वाज जे थॉमसन। वो कौन था? जे थॉमसन था, जे थॉमसन। जे थॉमसन आया और उनकी प्रॉपर्टी को क्या करने लगा? पढ़ने लगा। विलियम क्रुक ने क्या काम किया? विलियम क्रुक ने बताया
कि इलेक्ट्रिसिटी गैस के अंदर से पास हो सकती है, बस। उसने बाकी कैथोड रे के बारे में कौन बताया? जे थॉमसन ने बताया। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? जे थॉमसन ने बताया कैथोड रे के बारे में। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, इसको अगले पेज पे दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो, जे थॉमसन आ गया। जे थॉमसन ने वहां पे देखा कि एक कैथोड है, दो प्लेट है, एक प्लेट कैथोड है और दूसरा प्लेट एनोड है। उन्होंने देखा कि एक बीम ऑफ लाइट निकल रही है और जाके कहाँ हिट कर रही है? एनोड को। तो कहाँ से निकल रही थी बच्चा? कैथोड से। कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा नाम दिया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नाम दिया, तो इसका नाम हो गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस ट्यूब का नाम हो गया कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, इस ट्यूब का नाम हो गया कैथोड रे ट्यूब, और जिसमें से कैथोड रे निकल रही थी और एनोड को हिट कर रही थी। अब उसने सोचा, उसने बताया कि एक एक बीम ऑफ लाइट जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागे जा रही है, जिसको पॉजिटिव प्लेट बहुत पसंद आ रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि ये निगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कैथोड रे इज निगेटिवली चार्ज। कैथोड रे क्या है? निगेटिवली चार्ज है। कैथोड रे कौन सा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है। कैसे पता चला उनको कैथोड रे निगेटिवली चार्ज है? ये बात उनको कैसे पता चली? उनको पता चली कि कैथोड से निकल के एनोड पे जा रहा था, इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि ये तो निगेटिव है, क्योंकि कैथोड तो निगेटिव प्लेट है और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, पहली चीज पता चली। दूसरी चीज पता चली, उन्होंने बीच में एक स्क्रीन रख दी, एक स्क्रीन डाल दी बीच में, ऐसे एक स्क्रीन लटका दिया, ऐसे बीच में, ऐसे समझ लो ना, ऐसे पेंडुलम कैसे लटकाते हैं, पेंडुलम को मैं मिटा के लटकाता हूँ, ऐसे बीच में ऐसा सिक्का कैसे लटका दिया या प्लेट लटका दिया, ऐसे बीच में लटका दिया। तो उन्होंने देखा कि जब सिक्का लटका दिया तो यहाँ पे ना ये सिक्के की छाया बन रही थी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो मतलब शैडो बन रहा था, कहाँ पे? यहाँ पर। मतलब यहाँ से जब बीम ऑफ लाइट आ रही थी तो इसमें पास ही नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसकी छाया बन रही थी। इसका मतलब ये जो कैथोड रे है, वो कैथोड रे ट्रेवल करती है कैसे? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिल गई कैथोड रे की? पहली प्रॉपर्टी क्या मिली? इट इज अ नेगेटिवली चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तीसरी चीज क्या कैथोड रे की मिली है? कैथोड रे की तीसरी चीज मिली कि उसने बीच में पिन व्हील लगा दिया। पिन व्हील। पिन व्हील क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे एक एक नुकीला पॉइंट है जिसके ऊपर आप समझ लो कि ऐसा पिन व्हील, मैग्नेटिक व्हील है ऐसा। जरा सा भी हवा आएगा या जरा सा भी एनर्जी आएगी, जरा भी पार्टिकल लगेगा तो ये घूमने लगेगा, हिलने लगेगा। आप लोगों ने कंपास में नीडल देखा? कंपास का नीडल जो होता है वैसा बना दिया। कंपास का नीडल समझ लो आप लोग। तो कंपास का नीडल जो होता है वैसा कंपास का नीडल रहता है, वैसा इन्होंने लगा दिया पिन व्हील। और जब ये बच्चा पिन व्हील लगाया है इसने, जब पिन व्हील लगाया इसने, तो इसने क्या देखा कि जब बीम ऑफ लाइट आ रही है ना तो ये पिन व्हील को हिला दे रही है। इसका, यस, वाइड विंड व्हील, यस विंड व्हील होती है या पिन व्हील बोल सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है तो इस पिन व्हील को क्या कर रही है? हिला रही है। वो शेक कर रहा था, पिन व्हील वाज शेकिंग, और इट वाज व्हाट वी कैन से, इट वाज वाइब्रेटिंग, या फिर वो हिल रहा था, ऐसा समझ लो इस तरीके से। तो पिन व्हील को कौन हिला सकता है? अगर इसके अंदर पार्टिकल होगा तभी तो हिलेगा ना ये बच्चा। पिन व्हील के अंदर पार्टिकल होगा तभी तो हिलेगा, है कि नहीं? तो इसके अंदर उसने कंक्लूड किया कि कैथोड रे, व्हाट ही कंक्लूडेड द कैथोड रे मस्ट बी containing small tiny negatively charged particle, must be containing negatively charged particle which is moving the pin wheel। जो पिन व्हील को हिला रहा है, जो पिन व्हील को मूव कर रहा है, ऐसा कोई छोटा सा चार्ज पार्टिकल होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। ऐसा किसने बताया? थॉमसन ने। थॉमसन ने। बाद में इस डिस्कवरी में इसका नाम दिया गया।
उस पार्टिकल का नाम दिया गया। क्या पार्टिकल का नाम था? इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो वो पार्टिकल कौन था? इलेक्ट्रॉन था। और इस तरीके से बाई चांस, बाई चांस मतलब ढूंढने कुछ और गए थे और मिल कुछ और गया। ठीक है, तो इस तरीके से बाई चांस डिस्कवरी हो गई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई बाई चांस। ठीक है, so electrons discovery was a by chance discovery which happened while studying the properties of cathode ray। कैथोड रे की प्रॉपर्टी पढ़ने के दौरान थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। समझ में आ रहा है? स्टिल इट इज अ पेटेंट ऑन द नेम ऑफ थॉमसन ओनली। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि थॉमसन के नाम पे नहीं है, थॉमसन के नाम पे ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की। Yes, that means the electron was discovered by J.J. Thomson। बात समझ में आ गई आपको? कैथोड रे समझ में आ गया, थॉमसन की डिस्कवरी पता चल गई। ठीक है, तो आज के पूरे टॉपिक में, आज का पूरा जो टॉपिक था, आज का पूरा सिनारियो था, उस सिनारियो में यही एक स्टोरी के बेसिस पे हमारा कंटेंट था। अब हम कंटेंट के हिसाब से जाएंगे, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे और देखेंगे कि वर्चुअल मतलब एक्चुअल टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है और किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है चीजों को। ठीक है, ठीक है अविनाश सही बोल रहा। चलो फ्रेश होने के लिए 2-3 ब्रेकआउट्स खेल लेते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर पूछूंगा थोड़ा, या फिर अगर पॉसिबल होगा, अगर आप लोग आंसर दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई इजी टॉपिक पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलो 2-3 ब्रेकआउट खेलने के बाद हम लोग फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि काफी कुछ पढ़ लिए है। मैं सिर्फ डिस्प्ले करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ ब्रेकआउट आपको। सारे बच्चों को ब्रेकआउट खेलना है, इसके बाद फिर से लेसन होगा, फिर से लेसन चालू होगा पढ़ाई। ठीक है, बच्चों को भागना नहीं है, सब लोगों को रुकना है, सब लोगों को पढ़ाई करना है अच्छे से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीजें आपको फिर बाद में मिल नहीं पाएंगी बच्चा, आपको टेक्स्ट बुक में मिलने वाली चीजें नहीं है। टेक्स्ट बुक में मिलेगा ऐसा चीज नहीं है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक आइसोटोप्स। चलो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। एकदम इजी है, सिर्फ जोड़ के बताना है आप सबको। सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए। 68% पीपल हैव गिवन अ करेक्ट आंसर। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है बच्चों। हाँ, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, लिटरली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्या बताया गया। देखिए मैं बताता हूँ। अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था? 24 एटॉमिक नंबर था आपका। क्या था? एटॉमिक नंबर जो था, एटॉमिक नंबर 24 था। ये आप सबको आता होगा ऐसा मैंने अज्यूम किया था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4 then 3d5 and 4s1। now if we'll total it, see if you total it, yeah, this has become 10, 10 and this becomes 8, 8 and 10, and this is 24, right? So total 24. Now you will ask me the question, sir, why not this one? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2. Why not this thing? So the reason is what? D is here, it is half filled. The maximum capacity of D is what? 10 electron. D की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो 2 का आधा क्या हुआ? 1, तो 1 क्या हो गया? एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। बात समझ में आ रही है? चलिए ये वाला क्वेश्चन पूछूं एक, ये वाला बता दीजिए। ये भी इजी है, उसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सब चीजें हम लोग और करने वाले हैं और अच्छे से करेंगे, लेकिन फिलहाल एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि आपको आ जाएगा ये वाला आंसर। ये इजी है। किसकी एनर्जी? इसको अरेंज इन दी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में करना है आपको। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, उनके ऑर्डर में उनके वैल्यूज को रखना है। देखो बच्चों, एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा
यस 59% पीपल हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, बहुत सही। 3p सबसे कम है, फिर 4s, देन 3d, देन 4p। देखो बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, 4s 4p ऐसे करके सीक्वेंस याद रख रहे हैं। नहीं बेटा, आपको इसमें याद, आपको मैं सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ शेल्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। इसका मतलब ये जैसे 4p लिखा हुआ है, तो ये जो 4 है ना वो नव n है, 4 क्या है, n है। और p जो होता है ना, p और एस या फिर डी या फिर एफ, ये जो होते हैं वो सबसेल्स हैं। इसको कैसे लिखेंगे, एस का वैल्यू है 0, एल का वैल्यू क्या होगा 1, सॉरी डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी एस पी ना, पी पी पी, उसके बाद पी आएगा, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू क्या रहेगा 3। तो एस पी डी एफ 0 1 2 3, if you are having 0 1 2 3, so what we can say, this is L का वैल्यू। सो n प्लस L का वैल्यू निकालोगे तो 4s, सपोज इट इज देयर, तो 4 प्लस 0, सो 4, देन 4 प्लस p का वैल्यू 1, तो 4p का क्या आ जाएगा 5। ऐसे करके आपको अरेंज करना है। तो सबसे कम किसका है, 3p का, देन 4s, देन 3d, देन 4p, ऐसे करके आपको निकालना रहेगा इसकी वैल्यू। समझ में आ गया। ये भी मैं सिखाने वाला हूँ, ये भी आने वाला है आगे, आज इसी चैप्टर में है, जो कि आपको पुराना आपको आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आपको और इजी क्वेश्चन चाहिए अगर अगर तो मैं एक पूछ सकता हूँ आपसे, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। मैं आइसोटोप्स वाले में से क्वेश्चन पूछ लूँ जरा। यस, नहीं ये तो डेंजर लग रहा भाई। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मास नंबर इज दिस, नहीं नहीं ये सिखाना पड़ेगा। दिस ऑल वी नीड टू टीच। चलो ये वाला बता दो तो मुझे फटाफट, ये वाला अभी सिखाया हूं मैं, ये वाला किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा इसमें रॉन्ग नहीं करेगा। आसान सा क्वेश्चन लाया हूँ एकदम। Wow, 24% people have given a correct answer, where the characteristic of cathode ray depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. Yes, cathode ray do not depend upon the material of the electrode in the cathode ray tube. No, no, no. I think many answers are wrong. They start from cathode and move towards the anode. Ah, this is correct. They start from cathode and move towards the anode. Even option C should be correct. I think here key error is there. यहाँ पे की एरर है। 47% पीपल जो दोनों ने आंसर किया है वो दोनों आंसर है, सी और डी दोनों आंसर करेक्ट रहेगा बेटा। ठीक है, जो स्टूडेंट ने दोनों आंसर दिया सी और डी दोनों आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर की में कुछ एरर है, मैं चेंज करा दूंगा इसको। ठीक है, C and D people, the people those who have given the C answer and D answer, they both are correct. Okay, both are correct. Hello Samriddhi, hello Karthik, good evening, how are you? Okay, so let's continue with the topic. We had done a very nice breakout. So let's come back on our slide. Our slide was JW Prost was there and this was there. Let me take you on the slide. Okay. So, what are the subatomic particles? So, there is a topic called subatomic particle. Atomic particle. So, what is subatomic particle? In atom, we got that there is three particle, that is proton, electron, and neutron. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutron do not have charge, no charge. Okay, again I'm telling you, proton is positive charge, electron is negative charge, neutron do not have any charge. Okay, so proton, electron, and neutron, they do not have any charge. A neutron is not having any charge, proton is having positive, electron is having negative. So you can write like this way: electron, their symbol E minus; proton you can write P; neutron you can write N; and the charge of absolute charge on electron is minus 1.6022 into 10 raised to minus 19 कूलम। ये यस, ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3 है बेटा एनसीईआरटी में। महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत सारे कंटेंट सेम है। कार्तिक बहुत सारा कंटेंट सेम है।
Yes, so we are having here 1.6022 into 10 raised to minus 19, and here we are having plus 1.6022 into 10 raised to minus 19. Okay, uh, so we can see over here for proton and neutron, proton and electron, you will find the same data, same content, only the charge is different. Electron is negative charge, proton is positive charge. That's it. Okay, only positive and negative charges are there. In case of neutron, there is no charge. Neutron do not have any charge. Neutron do not have any charge. Relative charge is -1, relative proton is +1, and neutron is 0. Symbol for charge, symbol for electron, how we write electron is write E minus, and symbol for charge is positive. Okay, another one is negative, another one is positive. Mass in kilogram, always keep in mind that mass of one electron is 9.109 into 10 raised to minus 31. Okay, this is in kilogram, so you can say 1.1 of the one electron mass of one electron is equal to 1 point, no, sorry, 9 point, symbol of neutron is n, symbol of neutron is n will be written n, or they write the 0, they write sometimes 0, they write sometimes n. So one of the one electron is equal to 9.109 into 10 raised to minus 31 coulomb. Okay, so this is what the mass. Okay, mass, and what is the mass of proton? Proton mass is 1.672 into 10 raised to minus 27. Neutron mass is 1.672 into 10 raised to minus 27. So nearly neutron and protons are nearly equal. Electron is different. Electron's mass is so less. If you want to convert, if you want to compare between neutron, sorry, not neutron, between electron and proton, then you'll be getting one electron is equal to 1 by 1837 time proton. One electron is equal to 1.1 upon 1837 time proton. It means electron is so small, so small. It's as compared to proton. As compared to proton, it is so small. Are you getting me? Electron is so small as compared to proton. So keep in mind that this data is quite helpful. They may ask you for your MCQs reasons and something, so you can prepare for that. We'll go for the discovery of electron. How the discovery of electron takes place. I taught you. It's so simple. I taught you. The discovery of electron is what? In year 1897. J.J. Thomson investigated the cathode ray. I told found that the cathode ray are a stream of very small negatively charged particle, which is 1837 times, see, 1837 times lighter than a hydrogen atom, means one hydrogen atom's mass is one. So how many times lighter? It is lighter than 1 by 1837 times lighter than the atom. Are present in all atoms. Later these particles were named as electron. बाद में इसी पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन. मैंने ये स्टोरी आपको बता दी है. तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये देखिए कैथोड रे ट्यूब था जहां से कैथोड से एक बीम ऑफ लाइट पास हो रही थी. एनोड पे आके देखो ग्लो हो रहा था कि नहीं हो रहा था. और इसी के बेसिस पे, कैथोड रे ट्यूब के बेसिस पे ही पुराना जो टीवी होता था ना, टीवी, टेलीविजन, पुराना टीवी था, वो टीवी बनाया गया था इसी के बेसिस पे. इसीलिए आपका जो टेलीविजन होता था, आपकी स्क्रीन ऐसी रहती थी और पीछे देखो डब्बे जैसा निकला रहता था ऐसे. ये पीछे डब्बा है, इमेजिन करो ऐसे, और ये आपकी स्क्रीन है जहां पे फ्लोरोसेंट होता है, जैसे ग्लो होता है. तो टीवी आपकी ऐसे रहती थी. इसी के बेसिस पे टीवी बना था, टेलीविजन. पुरानी वाली टीवी होती थी ना, एलसीडी नहीं, पुरानी वाली टीवी. देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ गुरुजी.
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टेलीविजन। हाँ पता है, वेरी गुड। इतने भी मॉडर्न नहीं हुए ना, अभी तो टीवी वो देखे ही होगे, कभी ना कभी तो देखे होगे, भले आज घर में नहीं होगा लेकिन देखे होगे, टीवी के अंदर वो टीवी देखे होगे कम से कम। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखो जो थियरी हमने बनाई थी कैथोड रे का, देखो ये देखो 2 मिनट की स्टोरी और आ गई इसमें। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की थियरी थी, देखो यहाँ पे कैथोड था और यहाँ पर एनोड था, और हमने हाई वोल्टेज सप्लाई पास करी थी, और जब हाई वोल्टेज सप्लाई पास करी थी तो हमने देखा था कि बीम ऑफ लाइट यहाँ से कैथोड से निकल के एनोड में जा रही थी। एक साइंटिस्ट आए, बहुत स्मार्ट साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, क्या नाम था उनका? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन वाज वन साइंटिस्ट। गोल्डस्टीन ने क्या किया, उन्होंने यही मेथड को सिर्फ उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, और जब उल्टा कर दिया मेथड को तो उन्होंने देखा कि एनोड से बीम भी जा रहा है और वो क्या जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। यही मेथड को उल्टा कर दिया, फ्यू चेंजेस ही डिड, एंड ही डिड दी लिटिल बिट like he changed few things, and he did the anode ray experiment, because the beam was coming from anode, and hence this process was called as the anode ray given by the Goldstein। और लेकिन इस ये इनको ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया आया इनको अर्नेस्ट रूदरफोर्ड से। ये अर्नेस्ट रूदरफोर्ड से इनको आइडिया आया। व्हाट दे आर वर्क लाइक मैग्नेट, एंड what they are work like magnet, no, it's not like the magnet, it's not like magnet at all, it's like yes, they work like a magnet, नहीं ऐसा नहीं था वो कॉन्सेप्ट। मैं बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होता था, डिफ्लेक्ट होता था, दे कैन डिफ्लेक्ट एज देवर चार्ज रेज। देखो जैसे कि वो चार्ज रे था, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हो, समझ लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और ये अल्फा रेज आ रही है, सॉरी कैथोड रे आ रही है, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। इट वाज बेंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इट वाज अनदर वन वाज बेंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। जस्ट 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लूंगा। तो ये था अर्नेस्ट रूदरफोर्ड की स्टोरी, हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है। अर्नेस्ट रूदरफोर्ड की स्टोरी हम लोग क्या करेंगे, कल सुनेंगे, और उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, कैसे कैसे किया उन्होंने, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। और ऑलमोस्ट हम लोग बहुत सारे कंटेंट आज कवर किए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 6:30 PM, 6:30 बजे मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और पढ़ाई करते रहो बेटा। मिलेंगे 6:30 बजे शार्प। वैभव मुझे फोन कर रहे हैं, कुछ अर्जेंट है तो बताओ वैभव, फटाफट बता दो। वैभव मेरी आवाज आ रही है? वैभव मेरी आवाज आ रही है क्या? टाइम यस विसरायचं वैभव, होतं I'm सर. audible? वैभव मेरी आवाज आ रही है? हा येतोय सर. बोला बोला, काय बोलतोय? टाइम विसरायचं होतं फक्त. स्टार्टिंग कितीला होतं? 6:30 वाजता स्टार्ट होतो रोज, दरवेळी 11वीचा असतो। तू कितवीला आहेस, 11वीला आहे 12वीला? 11वी. 11वी ना, मग 6:30 वाजता चालू होतो आपल्या टाइमवर, 6:30 वाजता संध्याकाळी, 6:30 ओके. ते 7:30 पर्यंत असेल। हो. 12वीचं जर लेक्चर बसायचे असेल तर 5 वाजता असतं, 12वीचं 5 PM। ओके. ठीक है, चला टेक केयर।